All right, we're starting chapter 5, strategic evaluation and implementation and evaluation. Sir, once upon a time we started our journey, all right, of strategic management, where तुमको शायद maybe some interest got developed in this subject. Maybe you hate the subject even more now. All right, for some people, FM will help them pass. For some people, SM will help them pass. So it depends which category you are in. Shh. Now understand the approach for chapter number 5. We started our journey, sir. एक बार हमने mission की बात की, एक बार हमने vision की बात की कि why are we doing it, getting into the business? What are our values? What will we do at the present? What is the industry? What is the product? How to understand the customer? How to understand the industry? This is still not even 1 or 2% of strategic management in reality. Whenever you do MBA courses, you will be taught in even greater depth and detail and maybe even some practical aspect of it also. जहाँ तुमको एक्चुअली एक स्टार्टअप स्टार्ट करना पड़ेगा, एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा, वेयर ऑल ऑफ दीज नॉलेज विल हेल्प यू maybe increase your chances of success. ठीक है? Now, after going through that entire journey, sir, business level क्या करेगा, what is cost leadership, what is differentiation, what is core competency. So when you are able to answer all of these questions before you start your business, you have an increased or a better appreciation or understanding of the product or of the concept that you are going to launch in the market. ठीक है? अब क्या हो गया, ये सब चीजें हो गई सर, आपका फाउंडेशन ले हो गया, द बेस इज सेट. नाउ वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 जिसमें इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है. लाइक हाउ वन हैड अ थीम कि वी स्टार्टेड विद व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर बेनिफिट्स, फिर लिमिटेशंस, फिर प्रोएक्टिव रिएक्टिव. तो एक कनेक्टिविटी था. चैप्टर 4 में भी कनेक्टिविटी थी, यहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है. देयर आर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स. ये बेसिकली ओल्ड सिलेबस का चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 कंबाइंड ऑल टुगेदर. ये है 2 चैप्टर्स बट एज अ पार्ट ऑफ योर न्यू सिलेबस एक ही चैप्टर, मतलब बैलेंसिंग फिगर, वो बाकी सब कुछ उन लोग ने एक चैप्टर में भर के दे दिया. सो दे डिड अ गुड जॉब विद चैप्टर 1 to 4. दे डिड अ गुड जॉब विद चैप्टर 1 to 4. फिफ्थ में थोड़ा मेस कर दिया लोग ने, अननेसेसरीली लेंदी, कट कुछ किया नहीं, 2 चैप्टर को इनफैक्ट कंबाइन कर दिया एक ही उसके अंदर. So we will look, chapter 7 was structures and chapter 8 was implementation and evaluation. समझ में आ रहा है? So we will study the independent topics and the topics जहां से questions आने के chances are much higher. ठीक है? I expect one question coming from structures. आना चाहिए एक question. So we will do structures अच्छे से and we will do structures properly. तो chapter 5 में से जो we'll do everything properly but we'll spend more time जिसके chances ज्यादा है. सो दैट एग्जाम से पहले तुमको मालूम है कि यार तुम स्ट्रक्चर्स ये वो सब अच्छे से पढ़ के जाओगे. इवन इफ आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 5, इवन इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 1 प्रॉपरली एंड 1 कच्चा पक्का, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड 1 to 4 आर परफेक्ट. तो ही ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, वरना इट विल बैकफायर वेरी बैडली. Understand, there are 15 marks MCQ, rest 5 marks each. We will try to do 1 to 4 to perfect. There is no scope for leaving anything. Here I will make you understand, tell you what are the focus areas, so that even if 2 questions are asked 10 mark के लिए, maximum exposure I am saying, तो एक तो तुम्हारा कवर हो ही जाएगा from the topics, and एक जो बच जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के आओगे, तुम कुछ तो लिख के आओगे, परफेक्ट नहीं रहेगा बट कुछ तो लिख के आ जाओगे जिसमें 1.5 to 2 मार्क्स भी मिल गए. वी हैव वन द गेम. मैं तुमको पहले ही बोला है 3 परफेक्ट आंसर्स, आज जॉब इज डन. बाकी तुम एवरेज आंसर्स लिखोगे चलेगा. ठीक है? शुड वी गो अहेड? सो वील स्टार्ट फर्स्ट विद द इंटरेस्टिंग वन, दैट इज स्ट्रक्चर्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. One structure is expected either from traditional or modern, and within traditional and modern also यहां chances ज्यादा है इसमें से एक आने की.
यहां से भी आ सकता है, नसीब खराब है तो, बट यहां से चांसेस ज्यादा है आने की, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट मतलब if they ask you a question on structure, you are supposed to write the meaning, advantages, disadvantages and the diagram. Now unless they ask specifically कि what are the advantages, तो तुम advantages ही लिख के आओगे, but if it's a general question you have to write all four things. And sir कितना, see you can write 3 advantages, 2 disadvantages, yeah, 4 and 2, 3 and 3, ऐसा चलेगा, but you will have to mention advantages and disadvantages, ठीक है, क्लियर है? So we'll start with which one, traditional या modern? Traditional या modern? We'll start with simple structure, ठीक है। सुना ना, तुमको ऐसा लगना चाहिए ना यार, सर सुनते, सर ने बोला, तुम लोग ने बोला ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल वाला करेगा, ठीक है। नाउ एज द नेम सजेस्ट, व्हाट डज इट से? सिंपल स्ट्रक्चर इज, चलो फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ठीक है। नो सिंपल स्ट्रक्चर। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत केयरफुली बेटा ध्यान दो, कितनी बार पूछेंगे, या तो लोग डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, या तो ऐसा लंबा चौड़ा स्टोरी देके बोलेंगे विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। नाउ सिंपल पे आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज अदर स्ट्रक्चर्स। नाउ सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर अगेन एज आई सेड, we are in this chapter or in this subject not concerned with the title, all right, we are under this thing not concerned with the title। मतलब क्या? सर आप टॉप लेवल को सीईओ बुलाओ, वाइस प्रेसिडेंट बुलाओ, प्रेसिडेंट बुलाओ, किंग बुला दो, ऑल राइट, गोट बुला दो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कुछ भी बुलाना है आपको, वी डोंट केयर, वी आर ओनली कंसर्न दैट व्हाट इज हिज स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑल राइट। अब एक सिंपल मैनेजर होता है ना, डेजिग्नेशन, जेपी मॉर्गन में एक मैनेजर को या मॉर्गन स्टैनली में एक मैनेजर को वाइस प्रेसिडेंट बुलाया जाता है, और तुमको ऐसा कॉल आएगा ना, हाय आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेपी मॉर्गन, तुमको ऐसा लगेगा वाइस प्रेसिडेंट जेपी मॉर्गन, हिल जाएगा तुम, आया ना, एग्जैक्टली, मैनेजर फ्रॉम जेपी मॉर्गन बोला जाना, नहीं बात करना है तेरे साथ, वही आदमी तुमको बोलेगा आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, यस सर टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टाइटल्स आर इररिलेवेंट, व्हाट मैटर्स इज स्कोप। अगर आप सीईओ होके ग्रोथ के डिसीजंस नहीं ले सकते हो तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग सीईओ? यू आर नॉट द सीईओ, यू आर जस्ट कॉल्ड द सीईओ। अब सीईओज इन सम ऑफिसेज आर कॉल्ड सीओओ आल्सो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कई जगह पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑलराइट, कई जगह पे सीएफओ इज द सीईओ, सीएफओ सीएमओ भी है, कई जगह वो मार्केटिंग है, कई जगह वो मैनेजेरियल है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये टाइटल्स है, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। हर कंपनी का अलग स्टाइल, अलग नोमेनक्लेचर, अलग रूल्स, अलग रेगुलेशंस रहते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट लेयर्स, L1, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, L1 it talks about the decision making authority, it can be singular, it can be plurals, that is one thing you have to remember। and दूसरा, this structure is not equal to legal structures। now what do you mean by legal structure? don't think this is partnership, trust, HUF, firm, LLP, company, OPC, ये सब लीगल स्ट्रक्चर्स है कंट्री के, दीज आर नॉट योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या स्केलेटन। ये चैप्टर, ये स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाया जा रहा है? सो दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर ह्यूमन रिसोर्सेज बेटा। दिस डिसाइड्स हाउ वर्क विल बी डन इन योर
ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो सिंपल स्ट्रक्चर में कितना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है? एक। एक मतलब एक ही लेयर। इट कैन बी सिंगुलर, it can be plural, matlab a sole proprietor can also follow a simple structure and a partnership firm can also follow a simple structure. करेक्ट? क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है? ओनर्स है। सोल प्रोप्राइटर में क्या है? ओनर है, सिंगुलर एंड प्लूरल। उससे हमें वैसे भी हमने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। समझ में आ रहा है आपको? नाउ गाइस ऑल, अभी तुम मुझे एग्जांपल दो सिंपल स्ट्रक्चर का। आपको इसे ओपीसी बोला, ये बॉटल फेंक के मारूंगा, ठीक है? लगेगा बेटा ये बॉटल तो। बोलो। न्यूली एस्टैब्लिश्ड सीए फर्म, फर्म कैन फॉलो अ सिंपल स्ट्रक्चर। तुम्हारे दिमाग में ऐसे स्मॉल प्रोप्राइटर्स, स्मॉल बिजनेसेस आएंगे। सर पान वाला, सिंपल स्ट्रक्चर, एक ही आदमी सब कुछ संभाल रहा है, ठीक है? हाँ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या? अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ध्यान दो बेटा। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? द ओनर और द मैनेजर टेक्स ऑल द डिसीजंस, मतलब L1 इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दीज आर जस्ट एग्जीक्यूटर्स, मतलब इंप्लॉइज आर जस्ट एग्जीक्यूटर्स। ये सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं वॉट एवर द ओनर सेज। कोका कोला स्टार्टेड एज अ सिंपल स्ट्रक्चर, KFC started as a simple structure. Coca-Cola was first marketed as a medicine. The person who invented Coca-Cola, who used to manufacture, bottle, sell Coca-Cola all on his own. KFC में वो जो चाचा है ना बाहर हंसते रहते हैं, कर्नल सैंडर्स, वो पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप, मतलब गैस टू गैस स्टेशन जाते थे विद कुकर, गैस, चिकन एंड एवरीथिंग, एंड यूज्ड टू फ्राई देयर एंड गिव इट। दैट आल्सो एट द एज ऑफ 60 आई थिंक। 60, when he was 60 tab KFC was formed. So they all started with simple structures and slowly evolved. So whenever you start, you always go for your startups are generally, as you guys said, simple structures. Now simple structure के थोड़े characteristics है, थोड़े advantages है, थोड़े disadvantages है। Simple structure, quick decision making, भाई मैं ही हूं या दो जन ही है, जो करना है हमें ही करना है। क्लियर कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ऑलराइट, इसका डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज नो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, कोई भी कुछ भी कर रहा है। एंड एम्प्लॉइज डू नॉट जनरली टेक ओनरशिप, मतलब कंफ्यूजन एंड केओस हो जाता है। मुझे लगा मैंने इसको काम दिया, ये बोला मैंने इसको काम दे दिया, और पता चला कि काम हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैंने इसको बोला, इसने इसको बोला। There can be some chaos or miscommunication that takes place in a case of simple structure. Now, who is it suitable for, beta? It is suitable for people operating in a single market, in a single line of products. What do you mean by single market? Single geographical location. Alright? जैसे मुंबई में ही है, या महाराष्ट्र में ही बिजनेस कर रहा है, या पुणे में ही बिजनेस कर रहा है, तो सिंगल जोग्राफिकल मार्केट और लोकेशन, डीलिंग इन अ सिंगल लाइन, मतलब सिंगल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे फुटवेयर इज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ऑलराइट, स्पोर्ट्सवेयर इज अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट। So if you are operating in a single market with a single line of product, it is better to go for a simple structure. Is that clear? Advantages very easy. And हाँ, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, less, मतलब you should remember structure has a cost. इसका क्या मतलब है मैं आगे बताऊंगा, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर हैज अ कॉस्ट। जितना कॉम्प्लिकेटेड एंड इवॉल्व तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा ना, द मोर कॉस्ट यू विल बी इनकरिंग। क्लियर है? वो कैसे क्या हम आगे देखेंगे, ठीक है? चलो प्लीज राइट दिस डाउन।
क्या? SBU, Strategic Business Unit. Write this down. Guys, quick decision making.
रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हो गया। नहीं, कितना टाइम लगता है बॉस? ठीक है, नो क्लियर रोल्स विद इन द एम्प्लॉयज। हाउ मेनी लेयर्स कैन यू सी इन दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर? सोच के बोलना। 3? किसी को 4-5 दिख रहा है क्या? किसी को 4-5 दिख रहा है? हाउ मेनी? 1 2 3 4? 2? कौन से 2? L1 क्या है? ओके, और L2? एंड 3 किसको दिख रहा है ये? ठीक है, अगर तुम लोग 2 बोल रहे हो, तुमको अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं, देयर इज ओनली 1 लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैंने खाली डायग्राम जानबूझ के ऐसा बना। अगर मैं ये डायग्राम ऐसा बनाता, सीईओ एंड बोर्ड, एंड उसके नीचे ये, तो तुम क्या बोलते? एक ही लेयर। मैंने बस खाली स्प्लिट कर दिया तो तुमने बोला बस ठीक है सर, डब्बे 2 है तो L1 L2। समझ में आ रहा है बेटा? इसके लिए टेप लगा दिया था इधर। बोथ आर L1। समझ में आ रहा है? Why am I calling both of them L1? बेटा, CEO alone is not the whole soul of the organization. तुमको क्या लगता है सुंदर पिचाई अकेले सब कुछ करता है? ऑलराइट, या सत्या नडेला या टिम कुक, ऑलराइट, they do decisions or take decisions on their own? No, they always sit and consult with their board. अब बेटा इसको मैं डायरेक्टर बुलाऊं, प्रेसिडेंट बुलाऊं, कुछ भी बोलूं, मैंने यहाँ डायरेक्टर रेफरेंस इसके लिए दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस आर सीईओ एंड हिज बोर्ड। ही अलोन कांट डू एनीथिंग, राइट? सीईओ एक ऑनररी पोजीशन है कि यार ये तुम्हारा जो 10 डायरेक्टर्स है ना, उसमें से सीनियर मोस्ट और द मोस्ट एक्सपीरियंस को लोग सीईओ बोलते हैं, कि जस्ट इन केस देयर इज अ वोटिंग कॉन्फ्लिक्ट या टाई ब्रेकर है तो सीईओ कैन ट्राई टू रिजॉल्व द सिचुएशन, या तो द सीईओ हैज द वीटो टू ओवरटर्न एनी डिसीजन। समझ में आ रहा है? वो भी सेफ्टी चेक है, वो भी एक सेफ्टी चेक है कि कोई ऐसा हैप हैजर्ड डिसीजन ना ले ले। तो सीईओ इज ऑल्सो नथिंग बट पार्ट ऑफ द बोर्ड। ये डायग्राम मैंने खाली ऐसा बनाया,
रियलिटी में क्या है, सीईओ इज नॉट देयर बॉस, सीईओ इज नॉट देयर बॉस, ही इज द सीनियर मोस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। समझ में आया बेटा आपको, क्लियर हुआ इधर? तो यहां पे भी एक ही लेयर है ऑफ डिसीजन मेकिंग, L1 ये कंबाइंड इज L1। So what is functional structure? Functional structure is nothing but an improvement over the simple structure, जहां पे इसके जो disadvantages थे वो यहां के advantages बन जाते हैं। What is happening? What is function? Functional structure is a structure where similar activities are grouped into a function. तो अब ये जितने भी मेरे एम्प्लॉइज थे, अगर मेरा स्कोप एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब मेरा बिजनेस बढ़ गया है, तो मार्केटिंग वालों को एक जगह कर दूंगा, तो दैट विल बी मार्केटिंग फंक्शन। पहले सब लोग सब कुछ कर रहे थे, अब मैंने ग्रुप्स बना दिए, भाई तुम 3 लोग फाइनेंस देख लेना, तुम 3 लोग मार्केटिंग देख लेना, तुम 3 ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी हो, दीज आर ऑल फंक्शंस। अब तुम ये जब डायग्राम बनाओगे बेटा, इतना पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, यू कैन मेक मतलब इतना बस, यहाँ खाली फंक्शन लिख देना, ऐसा E1 E2 E3 हर जगह लिखने का जरूरत है। दिस इज मेरे लिए इजी है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। हाँ ये सब एग्जैक्ट है, वो देखो ना, सब कॉपी पेस्ट है वो, मैंने थोड़ा बार बार लिखा हुआ, ये E1 और ये E1 देखो एग्जैक्ट सेम, ये मैंने खाली यहां से उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, सो यू डोंट नीड टू, इवन इन द एग्जाम इतना बनाया, ठीक है, 2 फंक्शन दिखा दिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फंक्शनल स्ट्रक्चर? देयर कैन बी इंटर फंक्शनल सक्सेसेस और फेलियर। ये क्या मतलब होता है सर? सक्सेस ऑफ वन फंक्शन कैन मीन फेलियर ऑफ अनदर फंक्शन। क्या मतलब है इसका? फंक्शनल लाइन मैनेजर्स कैन डेवलप अ नैरो विजन। मार्केटिंग को सिर्फ मार्केटिंग की पड़ी है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम मार्केटिंग करेंगे। ओवरऑल विजन एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझ पाते ये लोग। हुआ क्या था, एक कंपनी है कोडैक, सुना है? क्या करता है कोडैक? ऐसा याद है, ऐसा एक रोल आता था वो कैमरे में डालने का, फोटो खींचने का, ऑल राइट, फिर वो कैमरा रोल स्टूडियो में देने का, फिर उसके फोटोज प्रिंट होके आते थे, बराबर है। वो एनालॉग कैमरास अपन बोल सकते हैं, वो नॉट डिजिटल इन नेचर, ठीक है। देन वो कैमराज ही बंद हो गए, वाई? बिकॉज ऑफ, इसके बाद क्या आया? डिजिटल कैमरा, और डिजिटल कैमरा अभी यूजलेस है बिकॉज ऑफ फोन्स, बराबर है। अपना फोन ही सब खींच लेता है यार, अभी कैमरा खरीदने का जरूरत नहीं है। DSLRs है, बट वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एंड अगर बहुत पैसा है तुम्हारे पास एंड तुमको फोटोग्राफर बनना है, तो तुम खरीद के जा सकते हो टाइम पास करने, जंगल वंगल, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट अदरवाइज डिजिटल कैमराज हैव बीन रिप्लेस्ड विद मोबाइल फोन्स, ठीक है सर। हु इन्वेंटेड डिजिटल कैमरा? Any idea who invented digital camera? Kodak was the company that invented digital cameras. हाँ, खुद ही बनाया, खुद ही डूब गया। एग्जैक्टली, सुनो अभी, एग्जैक्टली, वेट, Kodak is a very old company. मतलब I think one of the first companies to even come up with the whole concept of cameras, portable cameras, ठीक है। First digital camera that they invented was this big, इतना बड़ा डब्बा। वो प्रोटोटाइप था, टेक्नोलॉजी थी, बेचते नहीं थे लोग, ये लेके नहीं घूमते थे कि चलो अभी फोटो खींचेगा यहाँ, ऐसा नहीं होता था इधर, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट, वो डेवलप होते 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 इट बिकेम अ स्मॉल पॉकेट डिवाइस, बट इट वाज अ बिग कॉन्सेप्ट कि यार फोटो भी डिजिटली लिया जा सकता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? दैट्स वन प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन, दैट यू हैव सीन द अदर एंड ऑफ इनोवेशन। तुम लोग ने प्री इनोवेशन इतना नहीं देखा हुआ है। जैसे आई हैव सीन बोथ द कैमरास, इनफैक्ट आई हैव सीन ऑल द 3, ऑलराइट। वो जो फिजिकल होता है वो भी, डिजिटल भी, डिजिटल 5 मेगापिक्सल, वाओ,
मतलब हम लोग ऐसा रहता 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेरे दोस्त के पास 8 मेगापिक्सल, तेरे कैमरा से ही फोटो खींचेगा 8 मेगापिक्सल। अब 108 ये 200, 200 भी है मेगापिक्सल। एनीवे लीव दैट। कोडैक ने लाया, कोडैक का मार्केटिंग टीम ने बोला डू नॉट लॉन्च द प्रोडक्ट नाउ, इट विल हर्ट आवर स्टूडियो सेल्स। जो हम ये कैमरास बेच रहे हैं, रील्स, फोटो क्या बोलते हैं, रोल्स बेच रहे हैं, स्टूडियो में जो डेवलप हो रहा है ये सब बंद हो जाएगा, डू नॉट लॉन्च डिजिटल कैमरास। तो क्या हुआ, डिजिटल कैमरा इन्वेंट करना वाज R&D's सक्सेस। ऑलराइट, सो मार्केटिंग का सक्सेस मेंट R&D का failure, where managers start developing a narrow vision. The right thing to do was to launch the digital camera. प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही है ना, करो यार, कोई बात नहीं, किसी और ने लॉन्च कर दिया, वैसे भी तुम बंद हो ही गए ना यार। डिजिटल कैमरा आया ना, बहुत लेट स्टार्ट किया कोडैक ने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जेरोक्स सुना है कंपनी? नाउ जेरोक्स, तुमने ये सुना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI? ये देखो, ये सब GUI है। मतलब दिस आइकन दैट यू सी, द फोटोज दैट यू सी, विंडोज में भी तुम डबल क्लिक करते हो, सो व्हेन आई क्लिक दिस आइकन, एक प्रोग्राम रन होता है जिससे ये ओपन हो रहा है। तो तुम भी स्टार्ट दबा के माइक्रोसॉफ्ट पे जाके जो क्लिक करते हो, कंप्यूटर्स वर नॉट लाइक दिस बिफोर, तुमको मैनुअली कोड लिखना पड़ता था। तो एवरेज यूजर जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है कुड नॉट यूज अ कंप्यूटर, ठीक है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग फोटोज, ग्राफिक्स फॉर द यूजर टू यूज दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड एज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये किसने डेवलप किया था? गलत स्लाइड पे आ गया। ये किस पे डेवलप किया था? ये किसने डेवलप किया? जेरोक्स कंपनी ने बेटा। जेरोक्स सुना है? जेरोक्स तुम कराते हो ना, जेरोक्स फोटोकॉपी, ठीक है? तो ठीक है यार, काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम ही, ये वर्ब भी बन गया ना, एक्शन वर्ड, जेरोक्स, ठीक है, चलेगा बेटा। बट जेरोक्स ने सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, कंप्यूटर में तो कुछ है नहीं जेरोक्स का। बेटा स्टीव जॉब्स वाज इनवाइटेड टू जेरोक्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसको दिखा रहे थे, उसने पूछा ये क्या है, बोले ये GUI है, इसका क्या करो, पता नहीं। जेरोक्स कंपनी ने बोला पता नहीं। दे इन्वेंटेड, एंड वो ना भंगार में रखा हुआ था। उन्होंने इतनी क्रिटिकल डिस्कवरी खरीद बनाई और उनको पता ही नहीं इसका क्या करना है, उसने उधर का उधर खरीद लिया। स्टीव जॉब्स सॉ, ही अंडरस्टूड, टुडे मैक इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आया ही बिकॉज ऑफ जेरोक्स कंपनी बॉस। और ये लोग स्टीव जॉब्स पे हंस रहे थे, ये भंगार खरीद के गया $5000 में। उसने ऑन द स्पॉट बोला आई वांट टू बाय दिस टेक्नोलॉजी, $5000 में खरीद के गया, उनके लिए वेस्ट था। फॉर जेरोक्स दे सेड ठीक है सर, अब पता नहीं क्या करेंगे, बनाया ऐसा कुछ हमारी R&D टीम ने ना, इमेजिन दे आर सिटिंग ऑन गोल्ड एंड दे हैव नो आइडिया, एंड एप्पल चेंज द एंटायर वर्ल्ड यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसने नहीं बनाया बॉस, ये जेरोक्स ने बनाया था, इसने सिर्फ खरीद लिया टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव कर दिया। और सोचो अगर ये लोग ने एक्सप्लॉइट एंड यूज किया होता बराबर, तो आज हर कंप्यूटर, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर जेरोक्स कंपनी का होता। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड कि इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, खरीद लिया, उस पर हंस भी रहे थे। $5000 बेटा, वो टाइम पे $5000 वाज आल्सो गुड अमाउंट, नॉट अ ग्रेट अमाउंट बट इट हैड सम वैल्यू बिफोर, एट द टाइम व्हेन कंप्यूटर्स वर बीइंग इन्वेंटेड, ठीक है? तो वो लोगों को लगा ज्यादा देके गया 5000। अब देखो रहेगा ना रिग्रेट, अब तो आके भी मतलब नहीं है, अब खत्म हो गया, द रेस इज गॉन, फिनिश। समझ में आया बेटा? सो क्या हो जाता है, योर फंक्शनल लाइन मैनेजर्स कैन डेवलप अ नैरो विजन, वहां के डिसएडवांटेजेस यहाँ के एडवांटेजेस बन जाते हैं।
स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, कम्युनिकेशन, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, कॉस्ट भी स्ट्रक्चर का कम है, स्टिल देयर इज एफिशिएंसी एंड सम लेवल ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाता है इधर, फटाफट सीईओ एंड बोर्ड अपने डिसीजंस ले लेते हैं. डिसएडवांटेजेस थी, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकॉज ये नैरो विजन वाला है. सो दिस इज एन एडवांटेज ऑल्सो एंड डिसएडवांटेज एज वेल. ठीक है, चलो हो गया, देख लो. फंक्शनल इज डन. बोलो बेटा. बोइंग वुड प्रोबेबली नॉट बी एट फंक्शनल स्ट्रक्चर. हम आगे डिस्कस करते हैं. It could be structural problems but not limited to functional structure, ऐसा you can say. एक दो ही बुलाना बनाने, सब लिख देना, सब फंक्शंस खाली एम्प्लॉयज एक दो में बना. फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स. Now the next structure is divisional structure and simple में से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं डिविजनल बोलूंगा. ठीक है, डिविजनल में क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज द सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर. उसके बाद अपन मॉडर्न स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाएंगे. ठीक है, नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर बेटा, डिविजन इज बेसिकली एन एडिशन ऑफ अ लेयर. क्या हुआ, यहां L1 L था, L1 या L1 स्प्लिट हो गया. अब मैं यहां पे है ना एक और लेयर डालने वाला हूं, दैट इज नथिंग बट डिविजन बाय वे ऑफ स्ट्रक्चर बाय वे ऑफ अ डिविजन. मतलब डिविजन कैन बी एडेड इन वन ऑफ फोर वेज. ठीक है, डिविजन बाय वे ऑफ ज्योग्राफी, डिविजन बाय वे ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड कस्टमर्स, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस. सर बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट स्ट्रक्चर. It depends on you, your human resources, your requirement, your market, your competitive advantage, your core competency. तुमको सोच के तुमको कौन सा भी जमेगा वो तुमको अप्लाई करना है. Now when do you use division by way of geography बेटा? देखो, a product or a structure where division by way of geography will look something like this. ठीक है, Netflix का हेडक्वार्टर्स या ग्रुप या यूएस, द मेन ऑफिस विल बी L1, the ultimate decision making authority. They have divided the market on the basis of geography. All right, where local markets require local approach. ये देखो, एशिया में हिंदी कंटेंट चलेगा, इंडिया में, एशिया के अंदर मतलब योर एनिमे भी कवर हो गया, इंडिया भी कवर हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी कवर हो गई. करेक्ट, तो उनको लोग एक साथ मैनेज कर रहे हैं. यूएस अपने आप में अलग से चल रहा है, यूरोप सेम वे, मिडिल ईस्ट सेम वे. वाई सर? सर मेरे पास शायद यूएस में इसका लाइसेंस है, एशिया में नहीं है. एशिया में अगर लाइसेंस नहीं है बट यूरोप में है, बिकॉज नेटफ्लिक्स प्योरली वर्क्स ऑन लाइसेंसिंग पर्पजेस. अलग अलग मार्केट डिवाइड करके रखना पड़ेगा. हो सकता है यहां पे मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं, यूएस में नहीं कर सकता, यूएस में किसी और के पास इसके राइट्स है. पॉसिबल है? यस सर. प्लस टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग है. यहां वाले जो कंटेंट देखते वो यहां वाले नहीं देखते होंगे, यहां वाले जो कंटेंट देखते वो यहां वाले नहीं देखते होंगे. There are so many US TV shows and content which we still don't know, still do have no idea. वो तो ऐसा by chance we come across some content which is very very good. समझ में आ रहा है? Now same with McDonald's. जरूर लोकल देखो, जहां भी तुमको हिंट है
लोकल सॉल्यूशंस देना है ना. नो इट कैन बी विद इन अ कंट्री ऑल्सो बेटा, डजंट मीन एवरी टाइम इंटरनेशनल. इंडिया में भी मैं डिविजनल स्ट्रक्चर कर सकता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. इंडिया इज सच अ डाइवर्स मार्केट. वी डोंट हैव अ कॉमन लैंग्वेज, वी डोंट हैव अ कॉमन कल्चर, वी डोंट हैव अ कॉमन रिलीजन. अब महाराष्ट्र से बाहर ही निकल जाओ, अलग ही लगेगा, दुनिया ही अलग लगेगी. All right, you go to the south, there are some brands you would have never heard, they would have not heard brands which are available here. दुनिया ही अलग रहती है. तुम नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, इसके वजह से हमारा देश ना आगे नहीं बढ़ा. ये निकला ना जो कमेंट, शेम शेम. ठीक है. एनीवे, वी आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री बट वी आर सो डाइवर्स, द मार्केट्स आर डिफरेंट एंड बिजनेस डज नॉट जज. मैकडोनल्ड्स क्या बोलता है, इंडिया में क्या चाहिए बॉस. देखो इंडिया में है ना, देखो एक तो वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है. ऑल राइट. और सुनो सुनो, एक वेजिटेरियन है, एक है जो छुप के नॉन वेज खाते हैं. ये भी एक कैटेगरी है बॉस. जो घर में वेजिटेरियन है बट बाहर नॉन वेजिटेरियन है. फिर एक है जो 50-50 है, हफ्ते के 3 दिन खाएंगे या 3 दिन नहीं खाएंगे. फिर कोई है जो सिर्फ एग खाएगा, कोई है जो सिर्फ फिश खाएगा, फिर कोई नॉन वेज है बट उसमें सिर्फ चिकन खाएगा, बाकी बोलेगा अपने को नहीं जमता है. कोई है जो सब कुछ खा लेगा, बोलेगा सर अगर वो मूव होता है अपन खा लेगा, चलेगा, अपने को चाहे पका के दे दो अपन खा लेगा. ठीक है. नाउ इंडिया इज वेरी डाइवर्स एंड वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. करेक्ट. ऑलराइट, कैसा बोला ये, ठीक है ऐसा. इसमें भी क्या मालूम, मैं भी जो 2-3 चीज बोला कि इसको कुछ बुरा बुरा भी लग गया होगा. ठीक है, बट ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट केयर. तुमको बुरा लगेगा, तुम फीलिंग्स घर पे रख के आने का. ठीक है. नाउ पे अटेंशन, बिकॉज इंडिया इज सेंसिटिव दैट वे, they've decided कि लिसन, एक फिश का बर्गर बेचेगा, एक एक ही मिलता है बेटा, एक ही वेरिएंट, एक ही वैरायटी, कुछ नहीं. फिले ओ फिश करके मिलता है. ठीक है. नाउ अदर ऑप्शंस आर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेज में सिर्फ ओनली चिकन. बोला रेड मीट का सीन चाहिए ही नहीं अपने को. तो क्या पूरी दुनिया में नहीं बेचता है? ऑल राइट, दुनिया में तो ऐसी ऐसी चीजें बेचता है, तुम इंडिया वाला जाएगा बोलेगा हाँ मैकडोनल्ड्स नहीं खाएगा कभी भी. ठीक है, ऐसा है. बट सी बिजनेस डजंट जज. वो क्या बोलता है, इंडियंस पागल है ऐसा कुछ बोलता है क्या? नहीं. आई हैव अंडरस्टूड द इंडियन मार्केट. इट इज थोड़ा रिस्की टू सेल. नॉट रिस्की, माई मार्केट शुड नॉट और आई शुड नॉट. अभी बर्गर किंग है, वो रेड मीट बेचता है बॉस, रेड मीट बेचता है बर्गर किंग. ऑल राइट, यू हैव दैट वॉपर का सीरीज, वेज भी है, चिकन भी है, मटन भी है. इट सेल्स. वो उसका स्ट्रैटेजी है, वो उसका स्ट्रैटेजी है, बिकॉज उसको अपने उसका मेन बर्गर वही है, ग्रिल्ड. उसका बाकी सब टाइम पास है. मैकडोनल्ड डजंट फोकस ऑन ग्रिल. होता है फास्ट फूड टेस्ट, तंदूरी. ऑल राइट, तंदूरी देगा, मैक आलू टिक्की, पिज्जा, मैक पफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अफोर्डेबल रेंज प्लस रेड मीट पे जाएगा तो प्राइस पॉइंट भी इंक्रीज होते लगता है. प्लस चिकन अफोर्डेबल, वेज अफोर्डेबल. हमको ये स्टैंडर्ड बेस मार्केट को पकड़ के चलना है, वेयर लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस, लोकल स्ट्रैटेजीज, लोकल रिस्पॉन्स. मैकडोनल्ड्स का बल्कि ब्रेकफास्ट मिलता है, यस और नो? मैकडोनल्ड्स 7:30 चालू हो जाता है. यस, ब्रेकफास्ट मिलता है, हैश ब्राउन और वो मैक मफिन और ये सब चीजें, पैनकेक्स बहुत अच्छे रहते हैं उसके पैनकेक्स. मैक कैफे कॉफी वगैरह बेचता है. बेटा इट्स ओनली इन महाराष्ट्र एंड फ्यू अदर स्टेट्स. ये हर स्टेट में ऐसा नहीं है. नहीं है, ब्रेकफास्ट का ऑप्शन ही नहीं है उधर. साउथ में जाओगे ना, चेन्नई वगैरह जाओगे, वहां पे मैक कैफे या ब्रेकफास्ट ऑप्शन ही नहीं है. क्यों सर? वाई वाई? बिकॉज ऑफ इडली डोसा. तुम खुद खाते हो इधर मेदू वड़ा और इडली डोसा. ठीक है, ज्यादा बोलने का नहीं इधर. नाउ दूसरा, it's the reason why, because in Mumbai and all of these other states people are in a hurry. बस उनको पहुंचना रहता है कहीं.
लाइफ उनकी इधर ही खत्म हो जाती है कि भाई कहीं पहुंचना है। ठीक है, सुबह उठते तुम कॉलेज पहुंचना है, कॉलेज पहुंचा तो क्लास पहुंचना है, क्लास हो गया तो घर पहुंचना है, और घर एक बार पहुंच गए तो कल वापस कॉलेज पहुंचना है। ठीक है, यही तुम्हारा पहुंचने में ही जिंदगी खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैकडोनल्ड्स आर ऑलवेज नेक्स्ट टू और नियर स्टेशंस। यहां था वो टूट टूट गया, एक अलग चीज है, बट यहां भी था। एवरी मेजर स्टेशन आपको एक मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा। अंधेरी स्टेशन आप यूं बाहर जाओ, यहां भी मैकडोनल्ड्स, यहां भी मैकडोनल्ड्स, आमने सामने, कहां जाओ कंफ्यूज, दोनों भरे हुए इतना। एंड पीपल डोंट डू सिट चिल, वो तो जिसके पास टाइम नहीं है वो बैठता है। बाकी क्या है यार, सुबह सुबह कुछ है ऑन द वे खा लूंगा, बिकॉज सुबह उठ के हम तो बाय डिफॉल्ट लेट रहते हैं। हमारा डिफॉल्ट सेटिंग ही रेट है कि बस वो ट्रेन मिस ही होना है, वो बस मिस ही होनी है, सब चीज यही होना है, तो वो क्या बोलता है, चल फटाफट ऑन द वे खा लूंगा। बट इन साउथ इट डजंट वर्क दैट वे, पीपल स्लीप अर्ली। अरे 9:30 10 o'clock तुम चेन्नई के पास जाएगा, तुमको ऐसा लगेगा 1-2 बज गया है, नहीं 1-2 से भी ज्यादा लेट। ऑलराइट, पीपल स्लीप अर्ली, बेटा वहां का कल्चर वैसा है, बंद हो जाता है लास्ट। फैंसी का फैंसी रेस्टोरेंट ना 10 o'clock इज देयर लास्ट ऑर्डर। फैंसी से फैंसी मतलब जहां सेलिब्रिटीज आते हैं ना, उसका लास्ट ऑर्डर होता है 10 बजे। यहाँ तो 10 बजे निकलते अपन, हाँ अभी कहाँ घूमेगा, वो देखेगा। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस एंड पीपल देयर वेक अप 5-5:30, 7 बजे आपको दुकानें खुली मिलेगी, शहर चालू हो जाता है 7 बजे सुबह के। हाँ बेटा सुबह के ही ना, शाम के 7 से 10 तो काम नहीं करेंगे ना। Are you understanding? Morning 6:30 7 o'clock, stores are open, places are open, offices are open. All right, and उनके लिए ब्रेकफास्ट कल्चर बहुत स्ट्रांग है उधर। ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज अ होम एक्टिविटी, तो वहां मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट सर्व ही नहीं करता। लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग लोकल सोल्यूशन। ऐसा भी नहीं है कि देर आर स्टैंडर्ड अप्रोच थ्रू आउट द कंट्री, देर आर डिफरेंट अप्रोचेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपन इतना मुंबई में ट्रेन में रश देखते हैं, वहां थोड़ी ना होता है इतना सब ट्रैफिक जो देखते हैं, नहीं होता। इवन दैट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। समझ में आया? ठीक है, सो दैट इज डिवीजन बाय वे ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट वन, डिवीजन बाय वे ऑफ प्रोडक्ट। हल्दीराम खाया ही होगा तुमने। ऑलराइट, क्या क्या बेचता है हल्दीराम? सब कुछ। अमिताभ बच्चन। स्वीट्स, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, समोसा चाट। स्टोर भी है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है उनका। So when a company is dealing with few products which are different from one another, when a company is dealing with few products which are different from one another, and ये क्यों कर रहे? So that they can better manage। कि जरा स्वीट सेक्शन का परफॉर्मेंस देख ले, थोड़ा सेवरी का परफॉर्मेंस देख ले। सेवरी मतलब क्या? तुम्हारा नमकीन आइटम्स, राइट, मिक्सचर्स हो गया, आलू भुजिया हो गया, चना वना हो गया, जो भी है। ठीक है, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, देखो फंक्शंस आर बीइंग रिपीटेड। कॉस्ट बोला था, याद है? डबल हो रहा है इधर। आप समझा? इसके लिए फंक्शनल इज लेस कॉस्टली, डिवीजन इज मोर एक्सपेंसिव। अब ऐसा भी हो सकता है फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन ईच डिविजन एज वेल एज सेंट्रली। मतलब हल्दीराम का एक सेंट्रल मार्केटिंग टीम हो सकता है, या सेंट्रल सेल्स, या सेंट्रल लीगल टीम हो सकता है, एंड स्वीट डिवीजन में भी एक लीगल टीम है। सो डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन इज possible under a divisional structure. In a divisional structure, functions are performed within each division as well as centrally. Maybe depend करता है हल्दीराम का अगर requirement है तो। Now what structures do they actually follow? We don't know. We can only estimate. Why? They are not required to publish their structure. They are only required to publish their legal structure कि हम कंपनी है, हम अपने अफेयर्स कैसे कंडक्ट करते हैं वो थोड़ी ना रिक्वायरमेंट है कोई लीगल। हाँ, जरूरत नहीं है वो कुछ भी फॉलो करे यार, तुमको क्या करना है? उसने अपना कंप्लायंस लीगल वाला बता दिया कि भाई हम एक प्राइवेट कंपनी है या हम एक पब्लिक कंपनी है। सो वी आर ओनली रीजनेबली एस्टिमेटिंग।
ये डिविजन्स में फॉलो करते हैं, स्वीट एंड सेवरी. अब लुक एट कस्टमर बेटा ओवर हियर, वेयर डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट नीड्स. सबवे, सबवे कहां से आएगा? कस्टमर ग्रुप, कार अलग है, एयरप्लेन इंजन, एयरलाइंस एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है एंड नॉर्मल इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है. एयरप्लेन इंजन, एयरलाइन, रोल्स रॉयस इंजन भी बनाता है, एरोप्लेन इंजन बनाता है और कार बनाता है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हो गए. तुम क्या बोलेगा, आज मैं एयरप्लेन इंजन खरीद के लेके आ रहा है, घर में पंखा जरा स्लो है, अपन वो उधर वहां वही फिट करेगा, उसको चालू करके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, हवा आएगा मस्त, ठीक है. Listen, it's not about money. There is no requirement for you to buy an airplane engine. इनको यहाँ मार्केटिंग करने की जरूरत है. Buy one airplane, get one airplane engine free. दिवाली ऑफर 50% ऑफ. नहीं बॉस, ऑल राइट. नहीं, एयरलाइंस वाले आएंगे, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देंगे, दे विल टेक. दे हैव अ वेरी डिफरेंट मॉडल फॉर सेलिंग एयरप्लेन इंजन एंड अ डिफरेंट मॉडल फॉर सेलिंग cars. Same way functions can get repeated. L1 the home headquarter unit, L2 the person or persons, मैंने बोला सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, who's managing the entire division. अब इसको तुमको जो बुलाना है, किंग, क्वीन, क्लाउन, जो तुम्हारी मर्जी, जोकर, बिड़ू, बंटाई, ठीक है, जो बुलाना है तुमको उसको बुलाओ. द टाइटल्स आर नॉट रेलेवेंट. ठीक है. अनदर, बेल्जियन वॉफल गए हो, गए हो राइट. क्या बेचता है बेल्जियन वॉफल? सर ऑफ कोर्स वॉफल्स बेचता. कौन सा वॉफल का है? ये सुना है कुछ? ये नटेला सुना है? नटेला बोलो, न्यूटेला बोलो, जो भी है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी. कभी बेल्जियन वॉफल्स में न्यूटेला का जार देखा है? हाँ देखा है. कौन से साइज का देखा बेटा? बड़ा साइज, टब रहता है सर, एक बाल्टी जैसा नटेला. ड्रीम है सर, ड्रीम. घर जाऊं ये बाल्टी लेके इसमें ही नहा लूं, है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हमको गरीबों को कैसा, ये छोटा छोटा डब्बा 700 ग्राम, 300 ग्राम, बस यही दो साइज होता है. एक 180 ग्राम्स का साइज रहता है, ठीक है, 180, 350, 700, ये तीन साइज. हमको ये बकेट चाहिए तो कहां से लेके आने का? मिलता ही नहीं है. Because these are when these brands work in B2B and B2C models, जिसमें B2C are retail customers, B2B को short में होरेका customers बोलते हैं. All right, these are B2B transactions. अब तुम जाते हो फ्रेंच फ्राइज खाते हो कोई भी रेस्टोरेंट में, तुमको क्या लगता है वो खुद काट करके देता है? बैठा है प्यार से, आलू छील रहा है, आलू काट रहा है. अनलेस तुमको एकदम फैंसी गॉर्मे रेस्टोरेंट में जा रहे हो विच आर नोन टू मेक देयर ओन फ्रेंच फ्राइज, ये मैकेन से ही खरीदते हैं या आईटीसी से या कोई भी एक ब्रांड से खरीदते होंगे. बट ये क्या जेप्टो से मंगाते? अरे राकेश का ऑर्डर आया, जेप्टो फटाफट. बेटा इनके 10-10, 15-15 किलो के पैकेजेस आते हैं. तुम ये नहीं बोलोगे होलसेल ना. होलसेल इज व्हाट? समवन हु बाइज इन बल्क, नॉट सेल्स इन बल्क. ऑल राइट, समझ में आ रहा है? तुमको यहां इनका जो मार्जिन है, कॉस्टिंग है, स्ट्रैटेजी है, फॉर होटल कस्टमर्स इज डिफरेंट एंड फॉर रिटेल कस्टमर्स आर डिफरेंट. हम 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ये 25-30 किलो का कंजम्पशन, बिकॉज दे आर रेकरिंग कस्टमर्स. अब तुम ये सॉसेस वगैरह खाते हो ना सैंडविचेस में, ये कौन सा कंपनी है? वीबा. वीबा, हाँ, डोमिनोज को वीबा ही सब प्रोवाइड करता है. तुमको वो देता है 100 रुपए का एक छोटा सा बॉटल. इनको 10-10 लीटर के पैकेजेस जाते हैं बिकॉज दे आर रिकरिंग कस्टमर्स. ऑल राइट. इनको मेयो, जैसे मेरे घर में मेयो आता है ना फॉर एग्जाम्पल, वो इसलिए आता है कि घर में मेयो होना चाहिए, मतलब ठीक है. कभी किसी ने पूछ लिया तो फ्रिज में से निकाल के हम दे सके. ऑल राइट. वो हम लाते, फिर वो एक्सपायर हो जाता है बेटा, फिर हम उसको फेंक देते, फिर एक नया पैकेट लेके आते हैं, ठीक है. तो आई हेट, मेरे घर में सब, मैं तो बहुत, आई तो हेट मेयो, ठीक है. ऐसा कोई है इधर जिसको मेयो पसंद है? किसी को नहीं पसंद?
राकेश को पसंद है, जरूर है। हाँ मिल गया, हाँ आने दो बस। मेयो का टेस्ट क्या होता है बेटा, बोल। नहीं, चांस ही नहीं, गंदा जैसा मीठा मीठा। तो फिर दोनों रहता है। मेयो बेसिकली हैज नो टेस्ट। इसके लिए तो मैं पूछ रहा हूं, जो मेयो खाता है मुझे बताओ क्या टेस्ट आता है। तो नमक डाल देना बेटा, क्यों इतना मेयो डालने का अपने को। नमक डाल दो, नमकीन चाहिए तो तुमको। सिंपल सोल्यूशन। ठीक है। सो पॉइंट इज, वीबा sells to individual customers like us small packages, all right, and यही सेम चीज ये लोग रेस्टोरेंट्स को बेचते हैं इन बल्क पैकेजेस। डोमिनोज को वीबा ही प्रोवाइड करता है चीज सॉस, फेक चीज होता है वो। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, इट्स फेक चीज होता है, डबल बर्स्ट, चीज बर्स्ट क्या है, लिक्विड फेक चीज रहता है वो, चीज फ्लेवर्ड सॉस रहता है वो, चीज नहीं रहता है, ठीक है। तुमको तो पहले ही एड़ा बनाते, कंज्यूमर्स है ना तुम लोग, ठीक है। ऑल राइट, नाउ तो प्रोसेस समझ गया, प्रोडक्ट समझ गया, ज्योग्राफी समझ गया, लास्ट वन नहीं, कस्टमर समझ गया, प्रोसेस बाकी है। इन अ प्रोसेस द फंक्शन इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉफिट सेंटर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर, पढ़ा है तुमने? तो वो क्या है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर? मैं ऐसा पढ़ाता हूं क्या तुम लोगों को? खाली एग्जाम्पल दे देते तुम लोग। हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, एक्सप्लेन करो ना। तुम्हारा इंटरव्यू है और मैं तुमको पूछता हूं व्हाट इज अ प्रॉफिट सेंटर, तुम क्या बोलेगा? फैक्ट्री। लिसन, a profit center is a department which is responsible for generating its own revenue. ऑल राइट, ओन रेवेन्यू, जो तुमने बोला बनाते भी है और बेचते भी है, तो उनका मेन फोकस इज रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेशन। एग्जाम्पल, रेमंड सुनना, शांत हो जाओ। एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर आई एम सेइंग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर का एग्जाम्पल रहेगा जैसे तुम आर्टिकलशिप करोगे या तुम जहां भी काम करोगे, तुम्हारा जो भी डिपार्टमेंट, टैक्स या ऑडिट, बिकॉज जो काम के लिए तुम क्लाइंट के, जो काम तुम क्लाइंट के लिए करते हो उसका पैसा देता है क्लाइंट, यस और नो। अब दूसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। ये लोग क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम है? दिवाली आ रही है, रंगोली बनाओ, ठीक है। पिकनिक आ रहा है, चलो एनरोल करो, ऑलराइट। सैलरी प्रोसेस, एकदम रिलैक्स जॉब रहता है। बट एचआर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है क्या? दे आर सपोर्टिंग योर स्टाफ, लीव पॉलिसी, ये वो वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस, प्रमोशन, ऑलराइट, दिवाली पार्टी, क्रिसमस पार्टी, ऑलराइट, रंगोली, दिवाली में गिफ्ट मिठाई देना, ऑलराइट, कंपटीशन रखना, ये सब गेम्स वेम्स इनका काम रहता है। रिलैक्स रहते हैं ये लोग एकदम, ठीक है। बट ये क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? कंपनी इन पे खर्चा कर रही है तो ये लोग कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? नहीं, ये कॉस्ट सेंटर हो गया। और जो तुम है क्लाइंट फेसिंग, ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट क्लाइंट फेसिंग ना, ये बैक एंड हो गया। तुम जो रहेगा क्लाइंट फेसिंग, तुम रेवेन्यू जनरेटिंग है, इसके लिए तुम्हारी इज्जत हमेशा एचआर से ज्यादा रहेगी, ठीक है। पगार कम ही रहेगा, ठीक है, बट एचआर से ज्यादा रहेगा बिकॉज यू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो वेयर अ फंक्शन इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉफिट सेंटर, इट इज कॉल्ड एज डिविजन बाय वे ऑफ प्रोसेस। जैसे यहां पे, जैसे स्पेस एक्स ले ले, ये रिसर्च करता होगा, प्रोडक्शन होगा, फंक्शंस है इनके, ऑलराइट। अब इसमें इसका ऑपरेशंस होगा, मतलब ये रॉकेट वॉकेट लॉन्च करता होगा, खुद के भी करता है दूसरे के भी करता है, ऑलराइट। नाउ नासा हैज कम, राइट, दे सेड भाई हमको नहीं पड़ता, तुमने कर लिया, तुम हमको लिए भी करके दे दो। सो यहां पे जो उसका ऑपरेशन फंक्शन था ना, इट बिकेम अ प्रॉफिट सेंटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये खुद के लिए भी कर रहा है एंड नासा या दूसरों के लिए भी कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी गुड एट मार्केटिंग, यू आर डूइंग मार्केटिंग फॉर योर ओन, जैसे बीसीजी होगा ना, उसमें मार्केटिंग होगा एक फंक्शन, एंड इट कैन आउटसोर्स और गेट द मार्केटिंग, it can perform marketing functions for other firms also, so that function itself will become a
profit center. So that is division by way of process. समझ में आ गया? Clear है? ठीक है? Please write this down. बोलो बेटा. क्या? बनेगा. तुमको करने का जो करना है वो करो ना. बनाओ. बनाओ. तुमको बनाना है तो तुम बनाओ ना. तो वो जस्टिफाइबल है कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर है. स्ट्रक्चर एज अ कॉस्ट. तुमने बोला मेरे को गुलाब जामुन का अलग से बनाना है, बनाओ. डुप्लीकेशन होगा. अब तुमको गुलाब जामुन बेच बेच के तुम्हारा डुप्लीकेट फंक्शंस का रेवेन्यू कवर हो रहा है तो करो. यू आर अंडरस्टैंडिंग. योर स्ट्रक्चर शुड जस्टिफाई. बनाने को तो तुम कुछ भी कर सकता है, बट इट शुड मेक सेंस. हाँ. हाँ. कहाँ थे अपन? इधर.
स्पेस एक्स कंपनी का नाम है बेटा। HQ। स्पेस एक्सप्लोरेशन बेटा। अच्छा नीचे में ऊपर का, क्लियरली बता तो सही कहाँ देख रहा है। क्या? हो गया? ठीक है, चलो बस हो गया यार। तब लिखने का टाइम बस हो गया। 15 मिनट एक कॉन्सेप्ट खत्म कर सकता हूँ मैं अपन। हाँ, चेक करूंगा करूंगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, क्या बोल रहे हो? दो तीन लोग अलग बोल रहे, तू क्या बोल रहा है? आंसर्स डिस्कस कर लो बोल रहा है, और डिस्कस वर्ड टू वर्ड तो जो आएगा ऑफिस में उसको मैं चेक कर लूंगा रैंडम बेसिस पे, बट आई विल डिस्कस ऑफ कोर्स। देखना ये बहुत जरूरी है बेटा, बिकॉज फिर द होल एक्सरसाइज हैज फेल्ड। इतना पढ़ के सीख के करके तुम लिख ही नहीं पा रहा है तो कोई मतलब का नहीं है। तुमको दुनिया भर का एसएम समझ में आ गया होगा बट लिख के नहीं कर पा रहे हो तो देर इज नो पॉइंट। ठीक है, ऑल राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपना ट्रेडिशनल। अरे हाँ, ट्रेडिशनल से पहले एम डिविजनल टेक्स्ट बुक खोलो जरा, एम डिविजनल पढ़ो।
Can you tell me the difference between divisional structure and M divisional structure? Page number 97. If you are able to clearly demonstrate the difference between divisional and M divisional structure, 2 tickets to your choice of movie, your show, your time. ठीक है? सबको नहीं, जिसने आंसर किया उसको 2 इसके लिए दे रहा हूं कि एक तो नहीं जाएगा ना बेटा, और किसके साथ जाएगा मैं नहीं पूछेगा, ठीक है? आई विल गिव यू 2 tickets. If you tell me the difference between divisional and M divisional, एकदम क्लियर कट डिफरेंस मुझे चाहिए अच्छे से, कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी समझ में आना चाहिए, हाँ सर यही डिफरेंस है. योर चॉइस, योर शो, योर टीवी, मतलब योर सिनेमा, यू कैन टेक समवन अलोंग. आई विल नॉट आस्क फॉर आईडी प्रूफ, ठीक है? नहीं, मूवी टिकट नहीं, नहीं मूवी टिकट तक बेटा उंगली दिया तो हाथ नहीं पकड़ने का, ठीक है? मूवी बोलो ना, कोई भी शो, तुमको 1 बजे का लेट नाइट 1000 रुपए का टिकट चाहिए, लेके जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. अब तुम बोलेगा खाना भी हमको खिला दो, तो फिर मैं बोलेगा सुबह का 10 बजे का शो, जा जा तेरे को जो समोसा वमोसा खाना है खा खिला दूंगा मैं, ठीक है? टिकट्स जल्दी बोलो अभी. बोल बेटा शुभम. हाँ ऑफ कोर्स, ट्रायल एंड एरर थोड़ी ना है, 1 चांस. हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे दो फिर समझा देना, दूसरों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है? बराबर. ओके. हाँ हाँ. ओके ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट. एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? मैंने कुछ बोला नहीं है, राइट रॉन्ग जो भी, ठीक है? उसको वो समझा तो ठीक है. तुम लोग को नहीं समझा, लोग तो यही बोलेगा ना. बोलो. हाँ. तो ये क्या है? अच्छा ठीक है. और कोई? बस हो गया? बोल दूं मैं? राकेश. हाँ हाँ. और कोई? और कोई? मैं तो बताऊंगा, मुझे तो आंसर आता है. बोल बेटा. हम्म. गॉट इट राइट. शी गॉट इट राइट. Yeah, you are right. There is no difference between divisional and multi-divisional structure. When I apply more than one criteria of the division, it becomes multi-divisional structure.
और उसने मुझे वही बोला कि अगर वो 4 में से एक और हो रहा है, मतलब till now in my career only 2 people have answered ये आंसर. यू आर द सेकेंड वन. एक ने पहले मेरे से टिकट लेके गया था, ठीक है. ऑल राइट. सो द पॉइंट इज, इफ यू हैव डिविजन बाय वे, जैसे यहां देख लो, दिस इज डिविजन बाय वे ऑफ, दिस इज डिविजन बाय वे ऑफ ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी के अंदर अब मैं डिविजन बाय वे ऑफ कस्टमर डाल दूं ना, दिस विल बी कॉल्ड एज मल्टी डिविजनल. द रीजन आई आस्क्ड यू, तुमको पढ़ना था और तुमको बोलना था सर सेम ही चीज तो लिखी हुई है, तुमको ये क्यों नहीं रियलाइज हुआ? यू आर ट्राइंग टू, मैंने बोला डिफरेंस तो तुम डिफरेंशिएट करने लग गए. दैट्स द प्रॉब्लम विद यू गाइस. तुम पढ़ो और देखो, अब पढ़ो, सेम नहीं लिखा हुआ है. सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड डिविजनल में is the same thing. There is no difference between divisional and multi divisional. ये स्ट्रक्चर अपने आप में ही मल्टी डिविजनल बोला जाता है, वो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. द बिगर द कंपनी द मोर डिविजन्स दैट दे विल हैव. राकेश का एक जगह गलत हो गया, राकेश ने डव को डिवीजन बना दिया, विच इज नॉट राइट. थोड़ा और 2-3 बार पढ़ के दिमाग में लगाता ना, ही वॉज ऑलमोस्ट देयर. सी राकेश सेड क्या, HUL है, HUL में एक डव डिवीजन है और HUL के अलग अलग प्रोडक्ट्स है. बेटा ये गलत ही डिवीजन क्लासिफिकेशन हो गया ना. इफ यू वुड हैव सेड HUL सोप कैटेगरी है एंड उसके अंदर वो अलग अलग चीजें बाइफरकेट कर रहा है, तो आई कुड हैव कॉल्ड इट, ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड इट एज मल्टी डिविजनल. समझ में आ रहा है? बेटा यू कैन क्लेम योर मूवी टिकट व्हेनेवर. मेरे को खाली एक QR कोड, देखो मैं बुक नहीं करेगा, ठीक है, मेरे को खाली QR कोड भेज देने का फाइनल ट्रांजैक्शन पे जाके. ऑल राइट, मैं वहां जीपे कर दूंगा उसको, ठीक है. 2 टिकट्स, वट एवर टाइम, वट एवर यू शो, वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा ऐसी टिकट लेना, फीस भी वसूल हो जाए. बेटा समझा? मल्टी डिविजनल समझा कि नहीं? अब पढ़ो, बोलो वही चीज लिखी हुई है ना. तुमको ये रियलाइजेशन करवाना था मेरे को, बस, और कुछ नहीं. इट इज नॉट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ मोर लेयर्स. पहले ज्योग्राफी कर लिया, फिर प्रोडक्ट कर लिया, या ज्योग्राफी कर लिया फिर कस्टमर्स कर लिया, या कस्टमर्स कर लिया उसमें प्रोडक्ट कर लिया. समझ में आ रहा है? नाम क्या है? नहीं, व्हाट्स योर नेम बेटा, मैं भूल गया. पार्थ. पार्थ ने जो एक्सप्लेन किया था वो टेक्निकली है SBU, प्योर परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर SBU. उसको बोलता है XBU एक्सप्लेन कर, 2 टिकट लेके जा, तो लेके जाता वो, ठीक है. पर XBU आसान आसान है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है SBU, ठीक है. बट देयर आर स्टिल कंफ्यूजन बिटवीन SBU स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. ऑल राइट, समझ में आ रहा है? अच्छा, व्हाट मेड यू रियलाइज उसमें डिवीजन के अंदर डिवीजन है? क्या लिखा है ऐसा मैंने उसमें? डिलीट करना पड़ेगा मेरे को, मस्ती कर रहा हूं. आई वांट टू नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. कॉमन सेंस ही था सर. तो लगा मैंने कुछ अच्छा लिखा होगा, बोला नहीं सर समझी बात है. अच्छा ये देख, बिना मेहनत के 2 टिकट मिल गया सर. मल्टी डिवीजन, ऑफ कोर्स एक से ज्यादा डिवीजन होगा उसके अंदर. क्या 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 लिख के दिया? अरे तुमने वो, मैंने लिख दिया है, मैंने गिव अप कर दिया होगा. कहाँ है? किधर है? अच्छा, डिसएडवांटेजेस आर द सेम एज डिविजनल स्ट्रक्चर. वही मैं बोला, इतना बड़ा हिंट थोड़ी ना दूंगा. वो डिसएडवांटेजेस आर द सेम एज डिविजनल स्ट्रक्चर. अच्छा तुम बोलो वो हिंट है,
ऐसा हम नहीं, उसने बोला सर आपने लिख दिया सेम एज डिविजनल। ठीक है, आईटीसी क्या क्या बनाता है बेटा? हाँ बोला, बहुत इतना 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 इच्छा के साथ कौन बोला टोबैको टोबैको? हाँ, ये इतना एक्साइटमेंट, टोबैको टोबैको कर रहा है कोई पीछे से, जैसे कि आईटीसी का एजेंट बैठा हुआ इधर। ठीक है, इतना एंथुजियाज्म मैंने पढ़ाई में नहीं देखा, जितना वो वॉइस में एक अलग ही वो था। ठीक है, तुमने सुना कि नहीं? ऑल राइट, नाउ लिसन टू मी बेटा, आईटीसी मेक्स टोबैको, करेक्ट? टोबैको में क्या बनाता है बेटा? सिगरेट कौन सी वाली? गोल्ड फ्लेक। और अरे नाउ बी बी थोड़ा मैच्योर बेटा, बी थोड़ा मैच्योर। आईटीसी टोबैको मार्केट शेयर, बॉस आईटीसी 73%, इनका ना पूरे ग्रुप का 78% पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पूरे ग्रुप का कम्स फ्रॉम टोबैको। 78% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ द इंटायर ग्रुप, सीएफएस बनाते हैं ना, तो 78% टोबैको कंपनी कंट्रीब्यूट करता है। 73% मार्केट शेयर एंड रेवेन्यूज में से, मतलब प्रॉफिट्स में से 78% पीबीआईटी कम्स फ्रॉम टोबैको। दूसरा क्या है, तुम लोग यूज ही करता होगा क्लासमेट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, आईटी में भी है बॉस। आईटीसी को क्या समझे तुम, क्या करता है? मतलब जैसा टीसीएस है, कंसल्टेंसी। छोड़ो, मेरे को कंटाल आ रहा है। अरे आईटी में क्या देखने का है तुमको? एंड आईटीसी इज इनटू एफएमसीजी आल्सो। सर सनफीस्ट, सर फियामा डिवल्स, होटल्स, यस, आईटीसी ग्रैंड मराठा। ऑल राइट, क्या हुआ? आईटीसी ग्रैंड मराठा इन मुंबई, आईटीसी ग्रैंड चोला इन चेन्नई, बहुत सारे, मतलब लग्जरी होटल्स वगैरह। एग्रीकल्चर में भी है, पैकेजिंग में भी है, पैकेजिंग पेपर। गिफ्ट रैप नहीं बेटा, से टन्स एंड टन्स ऑफ रोल्स होता है ना, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर भी आईटीसी ऑपरेट करता है। नाउ इज देयर एनी कॉमन कनेक्शन बिटवीन द टू, एक्सेप्ट कि स्टूडेंट के लिए दोनों काम आता है? सर ऐसा पॉसिबल है क्या सर? सर बाय वन क्लासमेट नोटबुक एंड गेट टू सिगरेट्स फ्री, ऐसा पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? बाय वन पैकेट ऑफ टोबैको गेट स्मॉल डायरी फ्री, पॉसिबल है? सर बुक वन होटल एंड गेट 1 kg आटा फ्री, पॉसिबल है? नहीं। सर आईटीसी ग्रैंड मराठा लो, आपको एक साबुन हम फ्री देंगे, पॉसिबल है? नहीं। अरे वो फियामा थोड़ी ना रहता है। सुनो, ध्यान दो, व्हाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस? लाइक पार्थ सेड राइट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। अब ये नहीं सोचना है कि सर इसके साथ ये फ्री दे सकते तो कॉमन है इसके, दिस वाज जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड। सी इन डिविजनल स्ट्रक्चर, देखो ये सब जो बच्चे हैं इनका पेरेंट एक ही है बेटा, और ये आपस में एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू कॉमन प्लानिंग। यार आलू भुजिया के साथ गुलाब जामुन फ्री देगा या वाइसी वर्सा, चलेगा? चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है सर? मीठा खाया ज्यादा मीठा हो गया, तेज खा लो, तेज खाया ज्यादा तेज हो गया, वापस मीठा खा लो, बस इन्फिनिटी लूप चालू है। इंसान गुलाब जामुन और आलू भुजिया में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। ऑल राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? there is some common planning or some common element given, but in this structure there is nothing common beta. So these are classified as SBUs, strategic business unit. This can be one company, one product, or can be multiple products. वो depend करता है आईटीसी को कैसा मेजर करना है। अब टोबैको के अंदर अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं, जैसे गोल्ड फ्लेक आपने बोला क्लासिक है, देन अदर मार्लबोरो इज नॉट आईटीसी, ठीक है? ऑल राइट, ऑल ऑफ दिस इज
कैन बी अदर डिविजन्स। अब मैंने क्या बोला, यहां पेरेंट सेम है, आईटीसी ग्रुप हेडक्वार्टर, बट ये जो है ना आपस में कोई रिश्ता नहीं है। क्लासमेट को कुछ जरूरत पड़ेगा, वो टोबैको को कॉल करेगा, वो बोलेगा चल भग इधर फोन कर, हम नहीं जानते एक दूसरे को। दे आर run as independent businesses. They are run as independent businesses. यार classmate का has its own set of competitors, classmate has its own set of market, classmate has its own strategy. What is applicable in tobacco? अब यहां पे इंडिपेंडेंट है ना बेटा, तो यहां पे डिविजन हो सकता है, डिविजन के अंदर फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर इंप्लॉइज हो सकते हैं। सो इट इज अ ग्रुप, a single business or a group of related businesses that are clubbed in such a way that they are subject to common planning. समझ में आ रहा है? क्लियर है? Now FMCG के अंदर they can have food and non-edible as divisions. ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट शुड बी अ डिविजन, बेटा स्ट्रक्चर हैज अ कॉस्ट। इफ यू मेक एवरी प्रोडक्ट एज अ डिविजन पागल हो जाओगे तुम खुद ही। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एडिबल नॉन एडिबल। एडिबल के अंदर आशीर्वाद, घी, आटा, बिस्किट, yippee, ये सब चीजें एफएमसीजी ये आ गई। साबुन वाले आइटम्स इधर आ गए, खत्म हो गया। दो डिविजन में आप काम कर लो। आप बोलोगे नहीं हर प्रोडक्ट का अलग डिवीजन बनाने को आप बना सकते हो, बट इट विल नॉट मेक सेंस। अब जैसे सोनी है, सोनी कैन हैव एसबीयूज, यस सर, चैनल को एक बना लो एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बना लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवीजन रख दो। एंड तीसरा PS5 मतलब प्ले स्टेशन, उसको अलग क्यों रखना है? बस सोनी को अलग रखना है कि इट वांट्स टू अंडरस्टैंड कि इसका डेवलपमेंट, इसका R&D, इसका रिसोर्सेस सब अलग चाहिए मुझे। उसको वो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लब चाहे तो कर सकता है, अलग रखना है तो अलग रख सकता है, बट दैट विल ओनली मेक सेंस जब PS इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि वो अपने आप का एक खुद इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर रख सकता है। एंड वो रखता है, PS रखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टीवी के लिए जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो SBU कैन बी अ सिंगल बिजनेस और मल्टीपल बिजनेस ग्रुप टुगेदर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? गोदरेज चिकन बेचता है, ताला बेचता है, अलमारी फर्नीचर बेचता है, प्रॉपर्टीज भी है, सिंथॉल साबुन भी है, फाइनेंस भी है। तो आर दे, कैन दे बी ग्रुप्ड? नो, अलग ही। प्रॉपर्टीज वाले अलग चल रहे, FMCG वाला अलग चल रहा है, लॉक स्टोरेज वाला अलग चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलते हैं एक चिकन खरीदो ताला चाबी फ्री देगा, वो लाइफ स्टॉक, गोदरेज लाइफ स्टॉक, गोदरेज ड्यूरेबल्स, वो अलग अलग यूनिट्स बना के बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर? विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, राइट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, SBU खत्म हो गया, उसके बाद दीज आर मॉडर्न स्ट्रक्चर्स, उसके बाद वी हैव टू डू अदर वंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।